cards mein the first card is the Page of Wands. They are not taken as 11, 12, 13, 14. This is just for understanding purpose. They are known as court cards. And how do we read the court cards? We see the keyword of the card plus the keyword of the suit. Page means messenger. All the pages means messengers or news bearers. संदेश वाहक. किसी भी चीज का संदेश आना, मैसेज आना, न्यूज आना, that is all pages. ठीक है? So it's news. Other thing is there is youth here, which means a young person may be involved, or an older person but youthful at heart. It is an immature energy. It will get more and more mature as we are moving up, like Page, Knight, Queens and Kings. Okay, it's an immature energy. And the other thing is that restless energy है, immature है. इसको हम लोग adolescent energy कहते हैं. आप समझ लो, अब आप लोग जैसे adolescents होते हैं, और इसको हम लोग आइडिया स्टेज कहते हैं, किसी भी चीज का आइडिया का स्टेज. ठीक है? तो जब पेजेस आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अपने आइडिया के स्टेज पे होता है. इट्स एन आइडिया और अ कॉन्सेप्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल. At the night level, it will become a executable plan. इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, then you will never go wrong. ठीक है? पेज के लेवल पर आइडिया है, लिख लीजिए. पेज के लेवल पर आइडिया या कॉन्सेप्ट है कोई भी चीज. It's just in the mind basically, or it's just in the air, or it's just between you and me. We are just talking about it. Okay? No action has been done so far on it. नाइट में ये एक लेवल ऊपर चला जाता है. नाइट इज ऑलवेज ऑन अ हॉर्स. हॉर्स मीन्स एक्शन, एग्जीक्यूशन. सो द नाइट इज अ मोर mature energy. It's got more stability and a clarity in the purpose. And it is no longer just an idea, but concrete steps are being taken to execute that idea. Okay, so we have planning, we have उस टाइम पर हमारी planning, execution, management, ये सारी चीजें आ जाती हैं उस लेवल पर, नाइट के ऊपर. Because horse is always moving in action, supervising. फिर आती है क्वीन उसके बाद. अब वो आइडिया जो पहले जनरेट हुआ, उसके बाद उसकी डिटेलिंग वर्कआउट हुई और वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ. अब क्वीन की स्टेज पे पहुंचता है. क्वीन जो होती है वो नर्चरिंग एनर्जी होती है. इट्स अ फीमेल एनर्जी. इट्स नर्चरिंग. इट्स वेरी मैच्योर. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी मैच्योर एनर्जी. इट्स अ सक्सेसफुल एनर्जी, बट इट हैज अ नर्चरिंग स्पिरिट टू इट. मतलब वो उस आइडिया का या उस प्लान का या प्रोजेक्ट का बहुत प्यार से भरण पोषण करती है. राइट डाउन दीज वर्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. उस कॉन्सेप्ट का भरण पोषण. शी इज नर्चरिंग दैट प्रोजेक्ट और दैट आइडिया, बिकॉज एनी प्रोजेक्ट requires a little bit of gestation period and careful attention and love in the beginning. It could be a relationship, it could be a new factory you have set up, it could be a tarot course you have joined. So when you learned about the course, when you read the course contents, and you maybe googled about what is the concept of tarot, what is the usefulness of tarot, etc., that was the page stage. It was an idea or a news at that time. You enrolled for the course, you paid the fees, you were added to the group, you started attending the classes. Night stage. Concrete steps were being taken to put it into action. ये सब नाइट स्टेज था. ठीक है? अब आप लोग धीरे धीरे नाइट और क्वीन के बीच में हो. Because as you are learning, what are you doing? You are very carefully taking care of the new knowledge that you are learning. You are protective about it. You do it, you deal with it very lovingly, nurturing your knowledge, nurturing your lessons, your notes, whatever is coming into your mind. आप उसको प्यार से सहलाते हो, जैसे एक मम्मी अपने बच्चे को सहलाती है ना, न्यूबॉर्न को. It is like that. It requires your love and attention at this stage.
And king will be when you have mastered the subject and you become a professional practitioner. King means success and materialistic rewards. तो अभी आप लोग जो हो वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की स्टेज पर हो. वॉन्ड्स है ना, बिकॉज वॉन्ड्स इज अबाउट परस्यूइंग योर पैशन. ठीक है, इस तरीके से सारे हमें सूट्स में इन चारों को इस तरीके से स्टडी करना है. अब लेट्स कम बैक टू पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स को हमें देखना है एज अ पर्सन एंड एज एन एनर्जी. दो तरीके से देखना है. पर्सन की तरह भी देखना है बिकॉज बहुत बारी पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो पर्सनालिटी टाइप भी होता है. तो पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? पेज ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग यू अ पर्सन और अ सिचुएशन व्हिच इज वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस. प्लीज राइट डाउन द कीवर्ड्स. कॉन्फिडेंस, स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना. कॉन्फिडेंस, फिजिकल स्टैमिना एंड एंथुसियाज्म. बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, बहुत इसके अंदर ऊर्जा है. ऊर्जा का बहुत ज्यादा स्रोत है ये. It's a physical card, related a lot with loving physical activities, fond of traveling and moving. And he just wants to take this wand and he wants to accomplish something with it. Okay, it's an idea. It's basically a new concept or an idea or a passion he has. And he's searching. Basically, आप देखोगे इसके आसपास आपको लैंडस्केप दिखेगा. He's searching. Challenges भी हैं उसके अंदर, but he's willing to take on the challenges. He's a very, like a confident kind of a very daring kind of a person. He's he's like a Mughal emperor. I have to conquer kind of a thing. Okay, so there's a urge to conquer here. Ambitious बहुत है. ध्यान रखिए, अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स या थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ जाता है तो किस टाइप का आदमी दिखाएगा? Is it a good sign? Page of wands plus maybe a two of wands. Is it a good sign? It is a good sign, but it's an immature energy. Immature but very ambitious. Yeah, very adventurous. I mean, wants to do a lot, but may make mistakes because of much immaturity. Very good. But may make mistakes because he is being hasty in the way he approaches the new projects. So we do not see any kind of thoughtfulness over here. There is a lot of daring and a lot of spirit, but also the desire to achieve quick results. But on the whole, all the quote cards are taken as very positive signs. Please understand all the major arcanas and all the quote cards. Very, very good signs. तो गोल अचीवमेंट का भी इसको बहुत शौक है. ठीक है, ये सब लिख लिया आपने. ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट में जो नाइट आएगा, अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है, दिस इज अ पर्सन हु इज एन अचीवर. ही इज एन अचीवर और अ सुपर अचीवर ऑलरेडी. Here we see a person who's riding a horse and the horse is got his limbs up in the air, his frontal legs are up in the air, showing that he is raring to conquer new peaks. Ma'am, एक question page पे था. हाँ. Ma'am, I have read somewhere that in relationships, page is a person who's like not very serious kind, or is yes, that is true. That is true because it's an immature energy. That means the person is very sincere in the feelings, but it may not be very long lasting. सिंसियर होता है, प्लीज रिमेंबर. अगर पेज ऑफ कप्स आता है और पेज ऑफ वॉन्ड्स आते हैं तो सिंसियरिटी होती है. लेकिन क्योंकि ये क्विक मूविंग एनर्जी, आपने एडोलेसेंट्स को देखा है, दे आर वेरी वेरी intensively involved in a particular game they want to master or some skill they are learning on YouTube, but very quickly their interest will also peter off. So the interest is jumping here from place to place. It's not their fault. Hormones का तकाजा है. ठीक है, तो ऐसे में you have to do your analysis with a compassionate mind. Don't be judgmental. Don't think that because the person had falsehood in his heart, that is why he deceived her.
No, it was a passion. While it lasted, it was very strong, but then his interest shifted to something else because it's a page energy. Now, if the same page energy becomes a night energy, it's more long lasting, durable, and there is a lot of thought behind it also. Planning के साथ है ना, जो चीज आप प्लानिंग के साथ सोच समझ के करते हो, your commitment level tends to be higher with that. Okay, so Knight of Wands, firstly, it talks about achieving your goals, achieving your dreams. Talks about a person who is a very fast decision maker, rapid decision maker, and may have an aggressive temperament. एंगर मैनेजमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं इसको. देखिए, अब आपको स्प्रेड में देखना होगा, अगर ऑल और फायर एनर्जी आ रही है तो ऑब्वियसली ये चीज एग्रीवेट हो जाएगी, और अगर वाटर एनर्जी आ रही है तो टोन डाउन हो जाएगी. एलिमेंट्स का, इसलिए मैं बार बार एलिमेंट्स को ध्यान में रखिए. ओके, by himself he's got an aggressive temperament, and he's quick to become angry, quick to form judgments about people, but he is also a very task oriented person. इंडिपेंडेंट वो है, काम करने वाला इंसान है, और बहुत फास्ट इसको रिजल्ट्स अचीव करने होते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अनरिस्ट्रेन्ड एक्शन. what is the future of my marriage, and this card comes, it shows that one of the parties is being very unrestrained, means without thinking about the feelings or the repercussions of their actions or the feelings of their partner, they just do as they please. तो यहाँ पे थोड़ी डोमिनेशन की स्पिरिट, या जिसको हम लोग थोड़ी टिरनी बोलते हैं ना, वो भी आ जाती है कभी कभी. अपने मन से काम करने की इच्छा, दूसरे की परवाह ना करना. तो इस एनर्जी को थोड़ा सा टेम करने की जरूरत पड़ती है. कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. व्हेन दिस कार्ड कम्स, कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट कैन गो आउट ऑफ बाउंड्स. थोड़ा सेल्फिश भी हो सकता है. नहीं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स सेल्फिश नहीं होता. वॉन्ड्स की एनर्जी अपने कभी भी सोचता है सेल्फिश बस. नहीं होती, एक्चुअली जेनरस होती है. अच्छा. क्योंकि फायर के जो साइंस होते हैं वो हमेशा जेनरस साइंस होते हैं. ठीक है. तो उसके अंदर कोई मैलिस नहीं है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, उसको जस्ट जुनून है गोल को अचीव करने का. फायर है तो बस ऊपर की तरफ मुझे जाना है. बल्कि थोड़े फूलिश होते हैं, मैं कहूँ तो, अगर सच्ची थोड़े फूलिश है, मतलब सुनते नहीं, समझते नहीं. कोई उनको समझा रहा है कि भाई ऐसे कर लो, सुनेंगे नहीं, अपनी भाग, अपनी उसमें दौड़ में लगे हुए हैं. थोड़े फूलिश होते हैं. अब Queen of Wands. Oh, Queen of Wands is a beautiful creature. Okay, you guys all have to aspire to become like her. Queen of Wands. First of all, she's a queen. Okay, so she rocks and she rules. All the queens are going to rock, but she rocks the most. So we have a Queen of Wands. She is, first of all, she is a highly accomplished professional. When we talk about wands, we talk about a person. Please understand, this can be a female or it could be a male who is high on female Energy. energies. Okay, that means he doesn't shy away from the feminine part of himself, and he's comfortable with both men and women. Okay, he might be a man or a woman, कोई भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि क्वीन निकली है तो हम किसी लेडी के बारे में ही बात कर रहे हैं. We do not have this gender differentiation in tarot. We can just mean that here is a man who is also very caring like a woman. We take the traditional, the archetypal meanings of a male and a female. Okay, the yin and the yang basically. So take those. There's nothing wrong with it. It means a man who is high on his yin energy, or a lady who is also very high on her achievement orientation. So firstly, she is a very skilled and a highly proficient professional, number one. Number two, talent. I want you to know two words here when the wands come. One is sheer talent. That means she's either going to have some mental acumen or some creative skill
through which she will become very famous and well known. Genuine talent है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो कुछ अलग ही दिखते हैं, अलग ही चमकते हैं. Please understand, fire is something which illuminates, which you can see from a distance. So they have a creative talent or some mental skill which shines from a distance. Number 3 is ethics and honor. Honest. इस वाले पूरे सूट के लोग जो होते हैं वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं. Honesty, sincerity, and they will reach the top through hard work and ethics. Dishonest नहीं होते, ये खास बात होती है. Swords वाले जो हैं या Pentacles वाले हैं वो हो सकते हैं, Wands वाले कभी नहीं होते. Actually they are pretty outspoken and blunt. They might be too honest. ठीक है, और ये जब कार्ड आता है, it says that you will get success at a very fast speed, amazing speed. You will attain a superior status, maybe a promotion, or you will attain a position of personal power. Maybe you will become the owner of a new home, or you will get married into a very influential family. Somewhere lot of status and respect will be attached to you. And this person is also hugely popular. Okay, तो इनकी पॉपुलैरिटी का भी एक आप पॉइंट नोट कर सकते हो. बहुत पॉपुलर होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और मोटिवेशन बहुत अच्छी करते हैं दूसरे लोगों की. ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल गुरुज, ये सब बहुत अच्छे बनते हैं. और एक चीज और, इनकी इसमें आपको एक कैट नजर आएगी. वो कैट जो है वो आपको दिखाती है देयर इंटरेस्ट इन द ऑकल्ट साइंसेस. ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी, टैरो, palmistry, एनी काइंड ऑफ स्पेल्स एक्सेट्रा, इनको बहुत इंटरेस्ट भी होता है और ये फॉलो भी करते हैं. बट इट इज ऑल इन द गुड स्पिरिट. ओके, नॉट लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल. अच्छा, एक चीज, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हैज एनीबडी डन ब्लैक मैजिक ऑन मी, प्लीज, I'm not saying this question cannot be asked, it can be, and sometimes people do also. So if this card comes reversed, it indicates black magic. And other thing is that if this card comes along with other cards like death and the devil, then even if it's upright, then it can indicate negative presences. One more tip I'll give you, don't say black magic ever to anybody. It's a very strong word. Just say that somebody has done a negative spell on you. ठीक है, और फिर उनको आप, जो हम लोग नेगेटिविटी रिमूवल का, मैंने आपको पैक भी दिखाया था, नेगेटिव रिमूवल का पैक आता है, क्रिस्टल पैक आता है, आप उस पर्सन को वो भी दे सकते हो. उसको क्रिस्टल्स दो जिससे कि वो नेगेटिविटी रिमूव हो, और उसको आप प्रेयर्स दे सकते हो, एफर्मेशंस दे सकते हो रिमूवल के लिए. Which card did you say? Death and what? डेथ एंड द डेविल कार्ड. Devil. ये Magician. आने चाहिए. नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये तीन में से कोई कम से कम 2 आने चाहिए. अगर हैं तो प्रेजेंस शो करता है. तब भी आपने बहुत ज्यादा गारंटी नहीं लेनी है, ठीक है, चीजों की. आपको ये नहीं पता कि जो पर्सन आपसे पूछना आया वो उसके खुद के कर्म कैसे हैं. हो सकता है वो खुद भी ऐसा प्रैक्टिस करते हो, तो हम किसी दूसरे को क्या जज करेंगे. True. ठीक है, सो इसलिए ये क्वेश्चंस पे इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा ग्रे जोन होता है, आपको समझ नहीं आता. यू कांट से नो आई विल Yes. नॉट चेक. You have to check, but then don't be very much judgmental कि नहीं आपके ऊपर. People also come with names. I feel she has done, he has done something on Yeah. me. Try to avoid that. Try to avoid taking readings on that. Ma'am, honestly,
till few days back, I mean, when I didn't know anything about tarot, I never believed that these things happen. हाँ But nowadays people believe so much in these things. I get surprised ये ऐसा भी होता है, but people are saying ऐसा होता है. होता भी होता नहीं, ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? अगर Yeah, आपके अब लग रहा है सारी कि होता है. होता है, अगर सात्विक फोर्सेस होती हैं तो फिर तामसिक फोर्सेस Negative भी भी होती है ना, होता है. दोनों चीजें फोर्सेस हैं, तीनों प्रकार के गुण हैं ब्रह्मांड में, तो तामसिक गुण भी है ना, लोग हैं, एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, बिल्कुल है। तो मैम सबसे पहले अपने आप को सेव करने के लिए क्या करें? वही क्रिस्टल्स हम पहने? Crystals. Crystals and third eye meditation, most important. And every day the method of purification of the white light therapy I have told you, please do 3 times 4 times a day, क्योंकि इस टाइम आपको सबसे ज्यादा प्योरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि अभी आप लोग जो हो एक न्यूट्रल जोन से पॉजिटिव जोन में आ रहे हो। धीरे धीरे फिर आप जब रेगुलरली करने लगोगे, फिर आपकी ऑलरेडी ऑरा जो है वो प्योर हो जाएगी। फिर उसको जैसे डीप क्लेंजिंग हमें शुरू में रिक्वायर्ड होती है ना, क्योंकि अभी तक क्लेंजिंग नहीं हुई थी, तो शुरू में आप डीप क्लेंजिंग कर लो, फिर उसके बाद तो यू कैन डू बेसिक डस्टिंग ऑल्सो, इट्स ओके। बट समटाइम्स इन द बिगिनिंग, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 2 months, you must every day 3 to 4 times you should do white light therapy. बड़ी पुराने पुराने ब्लॉकेजेस और ट्रॉमास होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, वो धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा बढ़िया कार्ड है, इसमें हर तरीके से अच्छा ही अच्छा है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। ओके, इस कार्ड में कोई नेगेटिविटी नहीं है और अच्छा है। अब हम आते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज नाउ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी रूलिंग ओवर अ डिपार्टमेंट or a company or a business. He's a ruler. क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हो गई, हाईएस्ट कार्ड है, ये पिनिकल है। तो अब क्या है, अब इसकी चमक, इसकी सफलता, इसकी कामयाबी सारी दुनिया देखती है। So he is a person who is very blatantly a career conscious man. He will be a huge success professionally, might be very famous also in his industry or in his circle. And you know, he's a guy who loves the spotlight. So he doesn't shy away, like he's not shy, he's pretty bold. एक तो intelligent है, charismatic है, और you know, he loves the limelight. So it's a combination of a star basically. He loves to be appreciated by people around him for his knowledge. Please understand, it is not hollow, okay? It's always knowledge or expertise which he wants to be applauded for. Strong leadership. He is a born leader. तो अगर ये किसी के लिए आता है, तो पर्सन अगर प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल नहीं भी है, बट उसकी लीडरशिप स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगी। फैमिली सिचुएशंस में, किसी मेडिकल क्राइसिस में, कहीं पे भी जहां भी चार्ज लेने की जरूरत है, दिस पर्सन विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी एफिशिएंट। ओके, सो ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट भी है, करेजियस भी है और स्किल्ड भी है, और एम्बिशियस है, कॉन्फिडेंट है, हाई लेवल ऑफ एम्बिशन, नॉट जस्ट हाई लेवल ऑफ एम्बिशन, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हाई लेवल ऑफ पर्सनल करिश्मा। मैडम इसके सीट के पास कुछ नीचे हाँ, इसका जो है वो नीचे, कई लोग इसको लिजर्ड बोलते हैं, Lizard, yes. लिजर्ड कह सकते हो, या आप इसको सैलामेंडर बोल सकते हो। सैलामेंडर जो होती है वो एक मेडिटेरेनियन टाइप का रेप्टाइल होता है, ऐसे ही छिपकली जैसा ही हाँ, होता है। लंबा लंबा. ठीक है, वो अभी हमें व्हील ऑफ फॉर्चून में दोबारा दिखेगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन रूट्स है ना, आई टोल्ड यू, इजिप्ट हो गया, इटली, फ्रांस, ये उधर की बेल्ट में यहाँ की सब पिक्चर्स डेवलप हुई हैं, तो आपको वहां के कई एनिमल्स मिल जाएंगे। सैलामेंडर कहते हर हैं कार्ड इसको। में ना, बंद कर दो। मैम, हाँ हर जी, कार्ड में नीचे एक ये साइन बना होता है, हाँ हाँ, क्या होता है ये? ये जो इसकी इलस्ट्रेटर है ना इस हाँ. डेक की, उनका सिग्नेचर है। रेडोवेट. हाँ हाँ, रेडोवेट, ओके. अच्छा, इनकी जो लेडी इलस्ट्रेटर है। ओके. मैडम इसका मीनिंग क्या है जो नीचे वो आप चिप करते हैं उसका वो क्या Lizard. जो आपको वहां पर कैट दिखा रही है, वो यहाँ पर आपको ये लिजर्ड दिखा रहा है मेल, अच्छा ओके वो ही दिखा रहा है, क्योंकि ये जो सैलमेंडर है ये पाताल लोक में रहता है, वो बिल बना के रहता है जमीन के अंदर। सो इट शोज द कनेक्शन विद द अंडरवर्ल्ड, नॉट अंडरवर्ल्ड एंड नेदरवर्ल्ड, ओके, कनेक्शन विद द नेदरवर्ल्ड। Excuse me, ma'am. हाँ,
मैम जैसे इसने रेड कलर के क्लोथ्स पहन रखे हैं तो ये एग्रेसिव भी है? अग्रेसिव है, फायर एनर्जी है। इसका ऊपर क्राउन देखो, आपको ज्वालाओं जैसा दिखेगा, जैसे फ्लेम्स होती हैं। क्राउन देखो इसका, है ना? ऐसे हर चीज में मीनिंग है। वेरी गुड, आप लोग ऐसे देखो एक एक मीनिंग। और रेड कलर जो होता है वो पावर, स्टेटस और कंट्रोल दिखाता है। रेड कलर टैरो के अंदर पावर दिखाता है, ऑफिशियल पावर, मतलब कि इनको कोई ऐसा पद मिला हुआ है ऊंचा जिसके बेसिस पे इनको पावर मिली हुई है। और ग्रीन क्या दिखा रहा है मैडम? ग्रीन शोज प्रॉस्पेरिटी, पैसा, एफ्लुएंस, कि जिस चीज को प्रोजेक्ट को टच करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। और येलो कलर जो है वो दिखाता है हमारे अंदर का ऑप्टिमिज्म और लोगों को मोटिवेट करने की हमारी कैपेबिलिटी, कि हम कितना दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं या टीम को लीड कर सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, इंडिविजुअल वर्कर्स होते हैं, ये होते हैं जो टीम के अंदर ज्यादा फ्लरिश करते हैं। इनको आप दे दो लीडरशिप का रोल, फिर देखो इनकी चमक। There is some lion also पीछे. That also shows that he's like दैट इज द powerful. ड्रैगन। ड्रैगन Dragon है. ड्रैगन दिखाया है। ड्रैगन क्योंकि जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। इन द चाइनीज mythology, ड्रैगन इज अगेन रिलेटेड because when it opens its mouth, big balls of fire are going to come out, and by emitting fire, by smoking fire, he is protecting the kingdoms. So this person is seen as the king who protects his empire or who protects his people. वही अगेन द टीम लीडरशिप वाली बात हो गई ना, ऑल दोज हु डिपेंड ऑन हिम और रिपोर्ट टू हिम। ये उनका एक, यू नो, ही इज लाइक द किंग ऑफ वॉन्स इज लाइक द टिपिकल अच्छा वाला राजा नहीं होता था हमारा। राजा के क्या क्या होने चाहिए, मतलब क्या क्या खूबियां, क्वालिटीज होनी चाहिए। प्रजापालक, फेयर माइंडेड, एथिकल, सबका सोचने वाला, ये वो है। ये सब ये वो है परफेक्ट जो राजा होते थे पहले। ये बनना ही राज करने के लिए है। और मैम इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, लाइक जैसे आप लिजर्ड बोल रहे हो, कुड बी. नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं, कनेक्शन विद द नेदरवर्ल्ड एंड इंटरेस्ट इन ओकल्ट साइंसेस। ये भी बहुत मानता है इन सब चीजों को। ये इसलिए मानता है ना, इसको समझ में आता है कि राजा को भी खुद को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। he doesn't mind wearing rings, he doesn't mind doing पाठ पूजा, he does all this, he believes in the power of the divine. Okay. He So says this कि is in the good मैं sense. हाँ, in the good sense. Please understand, it's with the good sense. Both king and queen of wands is in the good sense. They connect with the divinity of the occult sciences. They know it's a power, so why not to use it?